examination point of view. So let us start with chapter number 5. Chapter number 5, which relates to the arrest of persons. Now, here, section 41 to section 60 are there in this chapter. Few sections relates to the arrest by the police officer. Then few sections relates to the arrest by the private person. Few sections relates to the arrest by the magistrate. Like section 41 and 42 relates to the arrest by the police officer. Section 41 and 42 specifies the provisions of arrest of a person by police officer. Section 43 relates to arrest of a person by private person other than police officer, private person. Section 44 relates to arrest of a person by magistrate, not by a police officer, not by any other person, but arrest by magistrate. After that, there is a procedure of arrest. There are certain rights of the person arrested. So वो हमें इस चैप्टर में सारा पढ़ना है. Let us start with section 41. Section 41 is when police officer may arrest without warrant. When a police officer may arrest without warrant. उसके पास में कोई वारंट नहीं है और क्या फिर भी वो अरेस्ट करने का राइट रखता है किसी पर्सन को. So any police officer may arrest, may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person. Now in what conditions? First one, so who commits a cognizable offense, a person who has committed a cognizable offense. Secondly, point number B gives here is against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received. किसी पर्सन के अगेंस्ट में या तो कोई कंप्लेंट हुई है या उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ऐसी कंप्लेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस देन 7 years के लिए पनिशेबल हो. Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely. तो क्लॉज बी में क्या लिखा है? क्लॉज बी में लिखा है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है और किसी ऑफेंडर के लिए, किसी पर्सन के लिए, और वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होनी चाहिए और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस 7 years तक का पनिशेबल होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. पॉइंट नंबर बी में तो ये कह रहा है. अब इसका जो क्लॉज बी ए है, यानी कि सेक्शन 41 क्लॉज बी ए, जस्ट आफ्टर बिफोर सी देयर इज क्लॉज बी ए, उसमें ये लिखेगा सेम टू सेम पॉइंट अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received for a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which is more than 7 years. पॉइंट नंबर बी ए में सेम टू सेम लैंग्वेज है. यहाँ पॉइंट नंबर बी में लिखा है अप टू 7 years और वहां बी ए में लिखा है मोर देन 7 years, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहा फिर तो. इसलिए हम पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर बी ए को कंबाइन करके ही पढ़ेंगे, उनको एक ही मानेंगे. एक में 7 years तक का लिखा है, दूसरे में 7 years से ज्यादा के लिखा है, लेकिन मेन बात क्या है, जहाँ पे कोई हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो. अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ. जो सेक्शन 41 है इसमें मैं सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा और उन कीवर्ड्स के लिए आपको जो एक ट्रिक याद रखनी है, that is सिप सो डेरा. इसका अगर आप एब्रीवेशन का फुल फॉर्म बनाएंगे तो आपके सेक्शन 41 में जितने भी सिचुएशंस स्पेसिफाइड हैं जहां पे एक पुलिस ऑफिसर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है तो वो कवर हो जाएगा.
like C stands for cognizable offense, I stands for information has been received, तो उसमें B और BA दोनों आ गए. सबसे पहले information has been received for a cognizable offense punishable for less than 7 years, and BA, that is information has been received for cognizable offense punishable for more than 7 years. फिर आता है P में आता है proclaimed officer. C stands for cognizable offense, I stands for information has been received for cognizable offense, P stands for proclaimed officer, sorry, proclaimed offender, not officer, my mistake, proclaimed offender. Then S stands for stolen property. If any person has been, if the information has been received against any person that he is in the possession or he is receiving some stolen property, then that can also be arrested without warrant. So S stands for stolen property. Then comes O. O stands for any person who obstructs a police officer, obstructs a police officer while execution of his duties. So O stands for obstructs a police officer. बाधा उत्पन्न करता है किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने में. वो पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, आप जबरदस्ती उसके बीच में किसी तरह का हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर. D stands for deserter from armed forces. कोई पर्सन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस से को त्याग कर भागा हुआ है, deserter from armed forces. E stands for extradition treaty. Extradition means जो beyond the country होता है, कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में आउटसाइड इंडिया, बियॉन्ड इंडिया कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कमिट करके और इंडिया में आ गया है, then he can also be arrested in any part of India and can be tried wherever he has been arrested. If that act committed by him is an offense punishable under IPC, then he can be arrested if even if he has committed that act outside India or beyond India. So E stands for extradition और extraterritorial मान लीजिए उसको. R stands for released convict. If any released convict commits any breach of rules specified under subsection 4 of section 356, कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है और उसके ऊपर जो रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स का अगर वो ब्रीच करता है, सो R stands for released convict, that can also be arrested. And lastly A stands for arrest on any requisition. A stands for the arrest of a person for whom any requisition has been received from another police station. कोई ऑफेंडर है, वो किसी अदर पुलिस स्टेशन में कोई ऑफेंस करके वहां से भागा, एस्केप हुआ है, और उस पुलिस स्टेशन से आपके पास में रिक्विजिशन आता है दैट दिस इज अ पर्सन, दिस इज द डिटेल्स, यू हैव टू अरेस्ट दिस पर्सन. तो आपके पास में क्या आया, यू हैव रिसीव्ड एन अ रिक्विजिशन. सो ए स्टैंड्स फॉर अरेस्ट अंडर रिक्विजिशन received from another police station. So this is a short trick that can help you to memorize all the situations that have been mentioned under section 41 in which a person can be arrested without the warrant by the police. जैसे कि मैंने आपको बताया section 41 और 42 पुलिस ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल है. that 41 and 42 में ये लिखा हुआ है under what circumstances police officer has the right to arrest. So section 41 कहता है regarding without warrant and 42 कहता है with warrant. Not section 41 कहता है cognizable offense and section 42 कहता है non cognizable offense. वहां पे भी without warrant ही है 42 में, but under non cognizable offense के लिए. तो ये आप एक शॉर्ट ट्रिक सिप्सोडेरा याद रखना है. फर्स्ट ए में cognizable offense, बी में इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने बता ही दिया. आगे हम इसको स्क्रॉल करेंगे पेज को और उसमें पढ़ेंगे क्या आता है, ठीक है. और एक बार सब क्लॉज बी के सब पॉइंट्स को रीड आउट कर लेते हैं. क्या दिया है इसमें, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली द पुलिस ऑफिसर has
reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. तो पहली बात तो ये कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा बिलीव होना चाहिए उस कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन में जो बात कही गई है कि हाँ वाकई में उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया होगा. Secondly, the police officer is satisfied that such arrest is necessary. कौन सी conditions के लिए? To prevent such person from committing further offense. To prevent such person from committing any further offense. For proper investigation. For proper investigation of the offense. To prevent such person from causing the evidence of offense to disappear. To prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. Then to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer, or as unless such person is arrested, his presence in the court wherever required is not possible. His presence in the court without arrest will not be possible. तो ये कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई होता है पुलिस ऑफिसर तो उसमें वो पॉइंट नंबर बी में स्पेसिफाई कर रखा है, जिसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव होने पर वो अरेस्ट कर सकता है. किसी की भी इंफॉर्मेशन रिसीव के वो पर्सन है तो उसके लिए क्या क्या है. सबसे पहला टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग हिम फर्दर ऑफेंस, वो आगे जो कर चुका है ऑफेंस उसको और आगे अग्रसर ना करे उसको रोकने के लिए. टू प्रिवेंट फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सही तरीके से अनुसंधान को कार्यरत रखने के लिए. उसके बाद में टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ सच ऑफेंस टू डिसअपियर, कोई साक्ष्य मिटाने की जिससे उम्मीद हो या उनको खराब करने की, साक्ष्यों को बिगाड़ने की उम्मीद हो तो उसको रोकने के लिए. देन टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, किसी को इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस देने की जिससे एक्सपेक्टेशन हो. किस पर्सन को देने की? जो कोई फैक्ट्स या एविडेंस या टेस्टिमनी होल्ड करता है उसे जाके वो डराए, धमकाए या किसी तरह का लालच, प्रलोभन दे जिससे कि वो उन फैक्ट्स को कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट ना करे. या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे किसी पर्सन को बिना अरेस्ट किए कोर्ट में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं. तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो क्लॉज बी में इंफॉर्मेशन अगर ऐसे पर्सन के लिए रिसीव हो रही है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट. कोई कंफ्यूजन माइंड में किसी के? आगे बढ़ते हैं. पहला हमने इसमें कंडीशन ली है व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, सो इफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज देयर. और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी जो पुलिस ऑफिसर है उसकी प्रेजेंस में कन्विक्ट होना चाहिए. ये क्लॉज ए को आप एक बार देखना. हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब पुलिस ऑफिसर खड़ा है, उसी के सामने वो कोई मिस्टर एक्स किसी का मर्डर कर देता है तो वो उसको अरेस्ट तो करेगा, वो वारंट का इंतजार थोड़ी करेगा. तो पहला है कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. दूसरा है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैव बीन रिसीव्ड. अब देखिए पॉइंट नंबर बी ए आपके सामने लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया. बी ए में क्या कहा है? अगेन sorry, again whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment or for a term which may extend to more than 7 years whether with or without fine. तो सेम टू सेम चीज लिखी है, इसलिए मैंने बी और बी ए को एक ही में कवर कर दिया. किस वर्ड से याद रखेंगे? इंफॉर्मेशन से याद रखेंगे. बी में लेस देन 7 years है,
आई में मोर देन 7 ईयर्स है, पॉइंट तो एक ही हुआ। इंफॉर्मेशन से, आई से इंफॉर्मेशन याद रखना है। देन देखिए क्लॉज नंबर सी में दे रखा है आपको, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जो कि उद्घोषित अपराधी हो, जो कि भगोड़ा उद्घोषित किया गया हो, either under this code or by order of state of government. So P for proclaimed. After that comes clause number D, that is in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property. अगर किसी के पोजीशन में ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो कि चोरी की संपत्ति होने का जिसका अंदेशा है, and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing. तो जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी, एस स्टैंड्स फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट होते जा रहे होंगे सारी कंडीशंस। सबसे पहला आपका आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेकंड आ जाता है इंफॉर्मेशन फॉर क्राइम ऑफेंस पनिशेबल for less than 7 years, then information for offense punishable more than 7 years, then comes proclaimed offender, then comes stolen property. Then comes the next one, that is any person who obstructs a police officer, while in the execution of his duty, or who has escaped or attempts to escape from lawful custody. तो obstruct का ओ आप ले लेंगे। Then who is reasonably suspected of being a deserter from any armed forces. deserter यानी कि अपने फोर्स को, अपनी आर्म्ड फोर्स को त्याग करके, अभित्याग करके वहां से वो भागा है, एस्केप हुआ है। सो डी से हम डिजर्टर को याद रखेंगे। Who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists. किसी के अगेंस्ट में आपको कोई कंप्लेंट हुई है या इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या जिसके ऊपर कोई शक आपको पैदा होता है, of his having been concerned in any act committed at any place outside India. जिसने की कोई एक्ट आउटसाइड इंडिया कमिट किया है, उसके बारे में या तो कोई कंप्लेंट मिलती है या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर आपको शक होता है। एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई ऑफेंस किसी ने कमिट किया ऐसे पर्सन के लिए, विच इज कमिटेड इन इंडिया वुड, और वो ऐसा एक्ट जो कि अगर इंडिया में कमिट होता तो वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्रेडिशन। तो क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, ई फॉर एक्सट्रेडिशन। तो आप ये याद रखेंगे, ई फॉर एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किसी भी तरह से याद रख लीजिए, यानी कि एक्सट्रेडिशन क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, वी आर नॉट टेकिंग द रियलिटी, बट अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो जाती है तो इंडिया का कोई पर्सन श्रीलंका में जाके कोई ऑफेंस करता है और फिर यहाँ भाग के वापस इंडिया में आ जाता है, उस सिचुएशन में हम उस ऑफेंडर को यहाँ से पकड़ के श्रीलंका को हैंडओवर कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन कि श्रीलंका का ही कोई पर्सन वहीं पे कोई क्राइम करता है और वहां से आके यहाँ पे आके छुप जाता है, तो भी उसे हम पकड़ के उनको उनके हैंडओवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये ऐसी ट्रीटीज, ऐसे एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे तो कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में ऑफेंस करके, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, किसी भी कंट्री में जा जाके छुप जाएगा। बट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है तो किसी भी कंट्री का कोई offender है, he will be arrested and handed over to that particular country in which he has committed the offense. तो हम जैसे वो अबू सलेम वगैरह को लेके आए हैं हमारे कंट्री में, तो वो किस बेसिस पे लाए हैं, वो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के थ्रू ही आ पाते हैं। तो ये बात आ रहा है पॉइंट नंबर जी में, क्या लिखा है उसने, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो एक्स्ट्रेडिशन के अंडर वाला कोई पर्सन ऐसा है that can be arrested without warrant. Then आता है आपका next one, that is released convict. R stands for released convict. Commits a breach of any rule
मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। तो कोई रिलीज कन्विक्ट था, उस पर आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको स्पेसिफाई कर रखे थे, और वो उनका अगर ब्रीच करता है तो उसे भी आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। एंड द लास्ट वन कम्स इज फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, जिसके गिरफ्तारी के लिए आपको किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन या रिक्विजिशन रिक्वेस्ट आई है। रिक्विजिशन को रिक्वेस्ट ले लीजिए, रिटन रिक्वेस्ट को रिक्विजिशन कहते हैं। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। तो ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपको रिक्विजिशन भेज रहा है उसके पास में विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट है। ये अगर कंफर्म है बात, तब आप अरेस्ट कर सकेंगे उसको, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भेज रहा है रिक्विजिशन उसके खुद के पास तो राइट है नहीं विदाउट वारंट, और आपको विदाउट वारंट वो अरेस्ट करने के लिए बोल रहे। तो इसमें पूरे डिटेल में बस इतना ही लिखा है, द पर्सन और द पुलिस ऑफिसर हु इज सेंडिंग द रिक्विजिशन मस्ट बी लॉफुली हैव द पावर, हैज द लॉफुली पावर और एंटाइटल टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये सारे के सारी सिचुएशंस इसमें कवर हो जाती हैं अगर ये शॉर्ट फॉर्म एक आप याद रखेंगे। हर एक अल्फाबेट से हम एक ऑफेंस बना सकते हैं। दैट इज C stands for cognizable offense in presence of police officer, I stands for information received, जो कि पॉइंट नंबर बी में लिखा है, तो पॉइंट नंबर क्लॉज बी में लिखा है इंफॉर्मेशन अप टू 7 years वाले क्राइम के लिए, एंड बी ए में लिखा है इंफॉर्मेशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 7 years के लिए। देन पी इज फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ stands for obstructs a police officer in execution of his duties, D stands for deserter from any armed forces, E stands for extradition, that is any offense committed at any place outside India and have been escaped in India. Then R stands for released convict commits a breach of rules, and A stands for arrest any requisition whether requisition received from another police officer। ये एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रखें, सारी कंडीशन आपकी कवर हो जाती हैं। देन सब सेक्शन नंबर 2 क्या लिखा है वो हम एक बार और देख लेते हैं, फिर हमारा सेक्शन 41 कंप्लीट हो जाएगा। और सेक्शन 41 रियल में इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में तो बनते ही हैं। मेंस में तो कंप्लीट सेक्शन 41, 42, 43, 44 इन चारों सेक्शन का कंबाइंड एक क्वेश्चन बन जाता है, और प्रीलिम्स में 41 में से गारंटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए सब सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, subject to the provisions of section 42 no person concerned in non-cognizable offense or whom against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of the magistrate। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इतना बड़ा जो हो जाता है ना, तो अपन तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से छोड़ना है और कहाँ पे जोड़ना है। तो इसको आप एक काम करो, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिना कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला अगर कोई ऑफेंडर है तो उसे आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट। वारंट के बिना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऑफेंडर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अब इसमें एक चीज हम जोड़ देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 42, यानी कि सेक्शन 42 में ऐसे प्रोविजंस आपको दे रखे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट देता है पुलिस ऑफिसर को। सेक्शन 42 में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जबकि एक पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ लिखा है नो पर्सन कंसर्न इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर द वारंट, बट सेक्शन 42 इज द एक्सेप्शन टू दैट। 42 में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हैं कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसे भी आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, ठीक है।
और बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी की जो बातें इसमें लिखी हुई हैं वो तो सारी एक जस्ट कनेक्टिविटी के लिए हैं, दैट इज ऑफेंस हो या फिर कंप्लेंट हो या इंफॉर्मेशन हो या रीजनेबल सस्पिशन हो, वो सारी चीजें तो कनेक्टिविटी के लिए हैं। जो जस्ट मैंने जो बॉक्सेस बनाए हैं उनके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, अ पर्सन कमिटेड विद और अ पर्सन concerned in a non-cognizable offense cannot be arrested without warrant, which section specifies that? अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्शन में ये लिखा है that without warrant आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंसर्न पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ऑफेंडर को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो आंसर होगा सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। क्लियर? कहां पे लिखा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट? ये लिखा है सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। और मैंने पहले ही आपको बता दिया 41 और 42 रिलेट करते हैं अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, 43 रिलेट करता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, एंड 44 रिलेट करता है प्राइवेट बाय मैजिस्ट्रेट। तो ये चार सेक्शन को तो अपने माइंड में आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फर्स्ट टू 41 42 पुलिस ऑफिसर का पावर है, 43 में प्राइवेट पर्सन का पावर है, और 44 में मैजिस्ट्रेट का पावर है। यहां तक अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब सेक्शन 42 पे बढ़ने से पहले हमारे पास में कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है, दैट इज सेक्शन 41A। These are inserted at a later stage. Section 41A specifies about notice of appearance before police officer. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. तो यहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 से कवर नहीं होते हैं। सब सेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? सब सेक्शन 1 में हमने सिप्सोडेरा का एब्रीवेशन का फुल फॉर्म पूरा उसका डिटेल पढ़ा। सो उसमें अगर कोई कवर नहीं होता बाकी, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस से पनिशेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा और नोटिस देके उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाएगा। Either it may be a police station or it may be any other specified place in the notice. Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice. और अगर कोई ऐसा नोटिस मिलता है पुलिस ऑफिसर की तरफ से प्रेजेंट होने का इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो उसे फुलफिल करना ये ड्यूटी है उस पर्सन की जिसके नेम पे नोटिस इशू हुआ है। Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है। तो पहली बात कि एक ऐसा नोटिस इशू होगा और जो पर्सन है जिसके नेम पे नोटिस इशू हुआ उसको उसकी कंडीशंस को फुलफिल करना, कंप्लाई करना कंपलसरी है, लेकिन और जब तक कि वो उन कंडीशंस को कंप्लाई करता है, कंटिन्यू करता रहता है, ही विल नॉट बी अरेस्टेड। वेयर सच पर्सन कंटिन्यूज और कंप्लाइज और कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। ठीक है। और फिर भी अगर वो अरेस्ट किया जाता है तो उस पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में वो रीजंस मेंशन करने होंगे कि उसने उसे अरेस्ट क्यों किया, जबकि वो नोटिस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था फिर भी उसको अरेस्ट किया। तो देयर आर सर्टेन रीजंस दैट हैव टू बी मेंशन्ड इन राइटिंग बाय दैट पुलिस ऑफिसर। देन कम सबसेक्शन नंबर 4, where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice.
तो और अगर वो फुलफिल नहीं करता है, किसी भी तरह का ब्रीच करता है, भागने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक सिंपल से पॉइंट्स हैं इसमें सेक्शन 41A में। सबसे पहला कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन है जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि सिप्सोडेरा को फुलफिल नहीं कर को में कवर नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट अरेस्ट करने के बजाय एक नोटिस इशू होगा उस पर्सन को एक स्पेसिफाइड प्लेस पर अपीयर होने के लिए बिफोर द पुलिस ऑफिसर। अगर ऐसा नोटिस आता है तो उस पर्सन के लिए ये कंपलसरी है कि वो उस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करे। जब तक कि वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता रहता है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और फिर अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को वायोलेट करता है, ब्रीच करता है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इस तरह से 4 पॉइंट्स में दे रखे। देन कम्स सेक्शन 41B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। किस तरह से अरेस्ट किया जा सकेगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, और अरेस्ट करने के बाद में एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और वॉट एवर ऑफिसर हु हैज अरेस्टेड, उसकी क्या ड्यूटीज बनती हैं, दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 41B। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 41B में क्या है? एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest, every police officer while making an arrest shall bear an accurate visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। आप लोगों ने देखा है ना, जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके एक बैज लगा रहता है, उस बैज के ऊपर उनका नेम मेंशन होता है, तो ये उनके लिए कंपलसरी है। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली? 41B के अकॉर्डिंगली। देन प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी attested by at least one witness who is a member of the family of the person। अब यहाँ पे एक तरह से आ रहा है कि प्रोसीजर क्या रहेगा, है ना? attested by at least one witness who is a member of the family of a person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made। तो एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करे, या कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, अरेस्ट करते समय अरेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एटलीस्ट वन विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए। अटेस्टेड का मतलब सिग्नेचर होने चाहिए, और वो पर्सन या तो मेंबर ऑफ द फैमिली हो, और या फिर अगर उसकी फैमिली में और कोई नहीं है, वो अकेला है, तो नियर उसके नेबर में जो भी रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी है ना, सोसाइटी नहीं लेंगे बल्कि दैट लोकेलिटी लेंगे, उसी के आसपास का, उसके होने चाहिए, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि ये जो अरेस्ट हो रहा है ये लॉफुल मैनर में हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के धर दिया अपन ने जेल में, ये लॉफुल मैनर में हो रहा है, ये चीज अश्योर करने के लिए। देन काउंटर साइंड बाय अ पर्सन अरेस्टेड, जिसको आपने अरेस्ट किया है उसके भी उसमें साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ मैं अरेस्ट हो रहा हूं। देन इंफॉर्मेशन inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। तो उसके पास में ये राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को बुला सके और अपनी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन ये राइट कब होगा उसके पास में? अगर उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे उसके फैमिली मेंबर के सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे फैमिली सिग्नेचर के फैमिली मेंबर के सिग्नेचर हैं, अटेस्टेशन है, तो इसका मतलब तो कंफर्म है ना कि उसके ऑलरेडी रिलेटिव को पता है, फैमिली मेंबर इज ए रिलेटिव, उसको ऑलरेडी पता है, तो फिर जरूरत, फिर ये राइट नहीं मिलता है। बट अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के ऊपर फैमिली मेंबर के सिग्नेचर नहीं है, तो उस कन्विक्ट के पास में, उस ऑफेंडर के पास में, अरेस्टेड पर्सन के पास में ये राइट है कि वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सके कि मुझे अरेस्ट किया गया है। ये हुआ प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। सबसे पहला जो अरेस्ट करने जाएगा उसका नेम के आइडेंटिफिकेशन का क्लियरली बैज उसके होना चाहिए। देन अरेस्ट करते समय एक मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाए, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाए अरेस्ट का, उसमें एटलीस्ट वन विटनेस के सिग्नेचर हो,
then countersigned by arrested person हो, and then the arrested person has the right to inform the friend or relative. ठीक है. Then आता है आपका section 41C. Section 41C specifies about the control room at districts, यानी कि districts में control room बनाए जाएंगे. The state government shall establish a police control room in every district and at state level. तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे और स्टेट लेवल भी होंगे. जो हम डायल करते हैं ना, डायल 100 पुलिस को बुलाने के लिए किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो कहाँ पे कॉल जाता है, वो कंट्रोल रूम में जाता है. सो द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश, ये किसके पास में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम. अब कहाँ पे किस लेवल पे होंगे, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एट स्टेट लेवल, and then the state government shall cause to be displayed on the notice board kept outside the control rooms at every district the names and addresses of the persons arrested. जो ऐसा कंट्रोल रूम होगा, उस कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड होगा और उस नोटिस बोर्ड पे नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स अरेस्टेड एंड द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट, वो उसमें मेंशन होना चाहिए. उस पुलिस कंट्रोल रूम के जुरिस्डिक्शन में, उस पुलिस कंट्रोल रूम के पूरे एरिया में, जहां तक कि उसका एरिया है, उसमें जो भी पर्सन अरेस्ट हुए हैं और उससे जिसने अरेस्ट किया है, वो उस नोटिस बोर्ड पे मेंशन होना चाहिए. द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल shall collect from time to time details about the persons arrested, nature of the offense with which they are charged, and maintain a database for the information of the general public. और जो कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर है ऑफ द स्टेट लेवल, तो क्योंकि ये जो सबसेक्शन 2 है, ये तो क्या बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी आपने कंट्रोल रूम बनाए वो सारे उस नोटिस बोर्ड पे मेंशन करेंगे. और फिर जो स्टेट लेवल पे बनाया गया है, सेकंड स्टेट लेवल पे है ना, तो जो स्टेट लेवल पे है वो क्या करेगा, वो इन सारे पुलिस कंट्रोल रूम्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और एक डेटाबेस प्रिपेयर करेगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी शो हो सके कि किस पर्सन को अरेस्ट किया गया है. ऐसा नहीं हो कि पुलिस जबरदस्ती लोगों को उठा उठा के जेल में बंद कर दे. पूरी ट्रांसपेरेंसी शो करने के पर्पस से एक ऐसा डेटाबेस प्रिपेयर करेगा पुलिस हेडक्वार्टर. ये था अपना सेक्शन 41C. देन कम्स सेक्शन 41D, राइट ऑफ arrested person to meet an advocate. सेक्शन 41B में, सेक्शन 41B में राइट था, सेक्शन 41B क्लॉज C में राइट था अरेस्टेड पर्सन के पास में कि वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सके ऑफ हिज अरेस्ट, वो तो है ही. लेकिन 41D में राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन भी है. यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसको किसी एडवोकेट से भी मिलने ना दें, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का उसको मौका ना दें, तो वो भी उसके पास में राइट है. व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट. ही शैल बी, में नहीं लिखा है, शैल लिखा है, यानी कंपलसरी है. ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस. ये भी जरूरी है कि उसके खुद की पसंद का होना चाहिए. ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर अपनी इच्छा से बुला दिया जिससे कमीशन सेट है उसको. So he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation. तो एटलीस्ट एक बार बुला के मिलवा दिया. ये भी नहीं है कि पूरे इंटेरोगेशन में उसके साथ ही बैठा रहेगा वो पुलिस ऑफिसर, बट एटलीस्ट एक बार उससे मिलवा के बुला के मिलवा दिया जाए, जिससे कि उसके आगे के जो प्रोसीडिंग है उसके लिए वो एडवोकेट प्रिपरेशन कर सके. तो ये था हमारा सेक्शन 41 चैप्टर 5, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेट करता है. सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60 तक इसमें टोटल हैं, जिसमें सेक्शन 41 आज हमने कवर किया. सेक्शन 41 जिसमें सिप्सोडेरा, आपको एक एब्रिविएशन याद रखना है, और उसके बाद में सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D और इसके एडिशनल हमें दे रखे हैं. किसी के माइंड में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज कल की क्लास में हम सेक्शन 42 से
कंटिन्यू करेंगे।